North, Manohar Devuma, Bonobosang, Baramrina Legrane, Executive Officer Bonobosang, Seni Sir Dilip Bormanobosang, Baramrina Legrane. Tai sing basically Lia Padinke Avan Yagolono, sing flag hoisting the Bukak Licenai. Sing Padinke, Tabuk flag hoisting the Bukak Licenai, flag Tishalai, sing Tinini tournament of Chang the Bukak Lane. Going to any players or no? Players, you are requested to get ready and also come back to the pavilion. Players on a coin Joto pavilion, pavilion of Hawi, Hanabagi, Sing Sini tournament of China Bakatang. Sini Narvarok, Sini Adam Somborok Tabu, flag hosting clay, flag Tishawi, Tinini tournament of Changna Bakatang. And so, Joto players on Kojago, players you're requested to come back to the pavilion. Tau Padinga sing Sini flag hosting Bakatang, flag hosting flight on Leo, Sini Barom Grang Yem, Tai Sini Barom Grang. MDC, Borok, Sini, Tinini, flag hoisting the Borok, Asam not play to the Boni Yagolono sing national anthem, both sing Rasabline. Belaka Hambai, Sini flag hosting planner no, Sini Adam Suno, Belaka Hambai Norsuno, Choa Bagay. Tai Padinga, no one has any players or no, any players of Dactic Clay, young or Pavilion or Kibili Panabag no Koizo.
Pada cái sừng seni borong borong siam tại boni logi tai seni yem sobo phase to sừng borong nobo borong re na lai granai Pada sing borong re na lai granai seni borong konang CM TTA di sini ngai sing we also phai male phajak so sing bono puila re saroi borong re na lai granai अच्छा तो फडिंगे सिंग बरम रे नाल रे दाक्ति खाइनो सिनी सीएम सरनो ताइ बनि यागलो सिंग बरम रे नागने सिनी ईएम रविन्द्र देबबर्मा एजुकेशन बनो सिंग बरम रे नाल रे बनि यागलो सिंग बरम रे नानै सिनी उमा शंकर देबबर्मानो बनो सिंग एमडीसी बनो सिंग बरम रे नानै ताइ यागलो सिंग वीरेंद्र सरनो सिंग एमडीसी बनो सिंग बरम रे नाल रे फडि ओंखाय बनि यागलो सिंग बेलाइखे Saito dong le dakti klai sing tini ni sini tournament no cengi nana ni bagai jorao no sing cenga ni wansu tong ni pia at least 15 minutes sing leading dak awan bagai non joto no koyo dakti klai sing sini players no ready tong no bagai koyo sini players no koine joto ready bai khangke line of asoi sere ro bor no escort klai langnai Hello check. Hello check. Hello check. Hello check. Check. Hello check. Hello. 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 Hello check. Sini players joto ready tongo fighting ke sing koina ne bono buskang phane bagi tai cherer no sini players no escort kai kana bagi tabu koyo I request all the players to go ahead in the field so that we can get started with the rest of the program for the day. Hello. 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 Tai tini sini borong borong adong sono koina hanai yang field of hane bagai tai sini players of by sini lemong tai chiwai dui borno best wishes dui sing tini ni tournament no cheng na bakal thanglai sinai awna bagai sini players of joto reading lai jak borok joto line of basawai tabu phale jak so sing tai bisi deklai lia nongoi na hanai sini tini ni adong sono oro phane bagai tai bon yaglo no sing football kick-off play sing cheng lai sinai Ladies and gentlemen, it is an important day for the Tripuri people, because it's the Cockburg Day today and also the 12th match of the TSL 2024-25.
And so today is going to be one of the special match between the North Panthers and the West Royals here at Komaling Stadium. And so thank you all for being with us. And I'm sure all of our audiences, live and offline, could actually watch us here from the Komaling Stadium today. नमस्कार, आदाब, खुलम खा, शुभ दोपहर एवं कॉक बरोग दिन की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। TTAADC सुपर लीग फुटबॉल टूर्नामेंट में एक बार फिर से आप सभी का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। आज के इस खूबसूरत से दिन में, इस बेहतरीन से दिन में हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे दोनों टीम्स, वेस्ट रॉयल्स एंड नॉर्थ पैंथर्स। एवं नॉर्थ पैंथर्स वेस्ट रॉयल्स के साथ साथ आप सब हमारे साथ जुड़ के रहे, इसके लिए धन्यवाद देना चाहते हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन हमारे दर्शकगण जिन्होंने अभी तक हमें ज्वाइन नहीं किया है, जल्द से जल्द ज्वाइन कर लें। TTAADC का ये बेहतरीन इनिशिएटिव है कि फुटबॉल को हम प्रमोट करें, फुटबॉल एवं प्रत्येक खेल को हम प्रमोट करें। पर दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम इन त्रिपुरा कि फुटबॉल को ऐसा एक प्लेटफॉर्म मिला है। साथ ही साथ जो हमें ऑफलाइन ऑनलाइन देख रहे हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिला है कि जो यहाँ हमारे साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं लाइव, वो देख सकते हैं हमें लाइव डिजिटली। तो ये बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है एवं आप सब हमारे साथ हैं तभी ये हो पा रहा है, तभी ये संभव है। साथ ही साथ आज है हमारा मैच 12। जी हाँ, इस टूर्नामेंट का 12वां मैच है और बहुत एक्साइटिंग लग रहा है कि आज ग्रुप बी का छठा मैच है। देखना ये है कि आज कौन जीता है। एंड क्योंकि आज कॉकबोरोग डे भी है तो हमारे लिए बहुत स्पेशल है ये दिन। एंड जरूर देखेंगे कि आज क्या होगा इस मैदान में। तो अब किक ऑफ से आज के इस मैच को हम शुरू करेंगे। हमारे माननीय रिस्पेक्टेड डिग्निटरीज के द्वारा किक ऑफ किया जा रहा है फुटबॉल को। I request goalkeeper from the another team. Okay, so we'll start the match, ladies and gentlemen. हमारे दोनों टीम्स रेडी हैं। हम सब जानते हैं कि वेस्ट रॉयल्स का आज तीसरा मैच है एवं नॉर्थ पैंथर्स का आज दूसरा मैच है। वेस्ट रॉयल्स का एक मैच जो था वो वह जीते थे, जो उनका पहला मैच था, एवं दूसरे मैच में किसी कारणवश शायद उनका दिन नहीं था इसलिए वह हार गए थे। पर आज देखना है कि किस नए टेक्निक से, किस नए स्ट्रेटजी से हमारे वेस्ट रॉयल्स के प्लेयर्स आज आए हैं। साथ ही साथ क्योंकि नॉर्थ पैंथर्स का आज ये दूसरा मैच है और क्योंकि वह पहला मैच हार गए थे तो आज का मैच में डेफिनेटली वह चाहेंगे कि उनकी तरफ से बेस्ट दे। एवं आज क्योंकि दोनों ही टीम लाजवाब अपनी स्ट्रेटेजीज के साथ है तो आज मानना पड़ेगा कि कुछ अलग बात है। स्टेडियम में एक अलग माहौल दिख रहा है। साथ ही साथ कॉकबोरोग डे है तो हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। इवन हमारे रिस्पेक्टेड डिग्निटरीज बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। आशा करते हैं आप सब बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। तो देखेंगे आज क्या होता है। कुछ कह नहीं सकते हैं क्योंकि अभी फर्स्ट हाफ तक, जब तक फर्स्ट हाफ नहीं होता है तब तक कुछ अनुमान लगाया जाए। इससे बेटर है कि हम देखें, जानें कि किसकी स्ट्रेटेजी में आज ज्यादा दम है। क्यों मिल्टन जी? Yes, absolutely, because today it's an important day. The Cockborough language has been announced as the official language. It's not the second language, but it's the official language of Tripura. And so this is one of its kind where the football tournament is being played today as the 12th match of the TSL. And so before we begin, let's get started with the opening song today and without any other delay.
amaniko Sini amaniko Padingay tahote busong sing tay duglaylia Sini tournament changna bakak sing thanglai sinai and Sini players of jot ready Sini officials robo ready another few minutes another 2 minutes ni yagulono sing changlai relai sinai and abahai keno tini kabang ma jagawono terpa haste ganangai Cockbrook Day celebrate khaijagi dong. Aba haikano TTAADC ni bakakti ke Cockbrook Day celebrate khaijaka. Pia Cockbrook Day celebrate khaman yagulo. Tini je tournament angai dong oro TSL TTAADC Super League 2024-25. Abono
Riksawino Teisana High Singoro the tournament Tinimutan Zagnai and Belakan as Tokai Tini senior players of Janija strategist to we or Afuglaja Tayaba Hakan of Boma Haket Tini Bongni tournament of Sanamit Langai of Borok Sinai and Sabotini Bahake Paimano Avano Chaito Line and Bukak Tanglaitongo West Royals versus North Panthers. Aun way nong ni baskang tabuk players kekrang tay kosom chumzak borok ga kay North Panthers tay kormo by kachak nya ke query color borok kay West Royals ni guys play start play the whistle blow kaya tay balaikan ay play long short pass play ri raho taka and West Royals so tabuk Cheng Drobo no Borong Mutamati Clary Tonje Boroman Society and Sini North Panthers Robo Tabuk Apoto just Cheng Droba Borobo as a pressurized player ko Srapta warm up ni Yaglop Huituba Borok Tinini the tournament of Belaikan I thought Clay Langtang and Sinkakayo. Ladies and gentlemen, it is needless to say that the North Panthers and also the West Royals today are here with a very beautiful, strategy that they have come up with. Really awesome to see the players getting started with a long shot today as the whistle blew. Nicely played around there and they carried really beautifully, shot in the air and probably, the North Panthers today are really prepared. Probably and here it goes. It's a corner kick, I guess. There's a signal from the linesman out there, and and it's going to be a defender's kick now over there from the West Royals. Really beautifully shot in the air, and it's really nice to see the players, tackling the ball really strategically. And so today, this afternoon, we have Mithun Das with us as the commentator in Hindi, and also Soromita Bhomik as the female commentator today, this afternoon, and I'm Milton, your English and Cockbrook commentator for the day. And so really, nicely played over there, and there's been a call from the referee. And so welcome everybody here at Komalung Stadium. You will be watching us live on the TTAADC official page, Facebook page, and I'm sure you're having a good time today. खुलुमखा नमस्कार प्रणाम। आज कॉकबोरक दिवस है और इस दिवस पर आप सभी को शुभकामनाएं। और मैच नॉर्थ पैंथर्स जिस तरह से अपना प्रदर्शन दिखा रही है, ऐसा लगता है कि आज ये हरा रंग चढ़ेगा। और वेस्ट रॉयल्स जहां उन्हें एक हारी है और एक जीती है, तो उनका भी रंग पीला है, तो चढ़ेगा जरूर। तो देखना है गहरा रंग किसका बनता है आज। तो आज कॉकबोरक दिवस है, तो टीटीएडीसी की तरफ से, बुबागरा की तरफ से आप सभी को कॉकबोरक दिवस की बहुत बहुत शुभेच्छाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, आने वाला दिन भी शुभ हो और मंगलमय हो। चलते हैं मैच की तरफ। और मैच का जो अभी परिस्थिति है यहाँ पर, अभी एक शायद अभी फ्री किक मिला है। चलिए, फ्री किक मिल गया है, शायद वेस्ट है उसको मिला है। तो ये एकदम गोल पोस्ट के पास, डी बॉक्स के पास है और इसका फायदा लेना चाहिए वेस्ट रॉयल्स को। दोनों ही टीमें आपस में देखा जाए एवरेज के हिसाब से दोनों टीमें बराबरी पर है, ताकत के अनुसार क्षमता दोनों में है। आप अनुमान नहीं लगा सकते अभी कि भारी किसका पलड़ा है। तो क्षमताओं का जोर अभी मैच में देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी खेल शुरू हुआ है। तभी देखना है हमें अटैकिंग पावर किसका ज्यादा अच्छा है और किसका अच्छा डिफेंड है। तो मेहनत पूरी देखने को मिलेगी आज हमें। चलिए शॉट देखते हैं। जी हाँ, लेफ्ट किक था वो, बिल्कुल हाथ पे थमा दिए थे, छूट गई थी वहां पर बॉल। कोई मौका नहीं वहां पर वेस्ट रॉयल्स के लिए, पैंथर्स के लिए। तो
ये सब मौके को, छोटे छोटे मौके को गवाना नहीं चाहिए। कल भी हमने जो मैच देखा था सौरभ और मिल्टन जी, उस मैच में भी जो मौके मिले थे वो मौकों को काम पे नहीं लगाया, नहीं तो कल भी मैच बड़ा बराबरी पे था। आपने पूरी मैच वहां पर देखे हमारे साथ, जो हमारे दर्शक थे वो भी देखे, काफी नाखुश थे। सिपाहीजला टाइगर्स दर्शक नाखुश थे उनके मैच से, क्योंकि उनका जो प्रदर्शन होना चाहिए था उच्च कोटि का, उस तरह का प्रदर्शन हुआ नहीं। मेहनत काफी की, बॉक्स में घुसे, बहुत अच्छा किक यहाँ पर उठा के मार दिया है डी बॉक्स के अंदर। देखना है क्या होता है। जी हाँ, कि वो गो जीके का शॉट है गोलकीपर का वहां पर। देखते हैं किस तरह से यहाँ पर गोल पोस्ट के बाहर गई है गेंद। अगर लंबा खींच के मारते हैं तो मौका लेंगे। देखिए अपने प्लेयर कहाँ कहाँ खड़े हैं। अगर आपने अच्छा फॉर्मेशन बना के रखा है तो लेफ्ट विंग राइट विंग को ध्यान पर रखते हुए ले जाइए, क्योंकि सारा दामड़ो मदार जो कल था वो एक प्लेयर सौरभ त्रिपुरा जो गोलकीपर था, देखते बना उसके प्रदर्शन को। तो आज हम भी ऐसा कुछ प्रदर्शन देखने को मिलेंगे। शायद उन लोग बोल रहे कि हाथ लगा है बॉल पे, तो क्या वो हैंडबॉल हुआ है? जी नहीं, कोई इशारा नहीं यहाँ पर रेफरी का। सौरभ पूरे मैच को किस तरह से आप अपने अंदाज में बताएंगे कि ये मैच बाकी जो बचा है वो किस तरह से गुजरने वाला है? सबसे पहले तो फिर से दर्शकगण आप सभी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं, हमारे साथ जो भी ऑफलाइन जितने भी जुड़े हैं एवं ऑनलाइन जितने जुड़े हैं हमारे साथ दर्शकगण। आज हम हैं खुमलुंग स्टेडियम में, जो वन ऑफ द बेस्ट स्टेडियम माना जाता है त्रिपुरा में। तो जब भी खुमलुंग स्टेडियम में हम आते हैं एवं जब भी नए मैच में हम आते हैं, मेरा पर्टिकुलरली एक ही प्रश्न पहले रहता है गेम के एकदम शुरुआत में, मैच के एकदम शुरुआत में, कि फर्स्ट हाफ कौन लेगा। ये फर्स्ट हाफ मायने बड़ा रखता है, क्योंकि फर्स्ट हाफ में अगर आप एक गोल या एक स्कोर कर लेते हैं, आपके स्कोर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके ओपोनेंट टीम को आप कितना प्रेशर दे रहे हैं नेक्स्ट हाफ में। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं बहुत खूबसूरत शुरुआत। यहाँ दोनों ही टीम काफी एनर्जेटिक लग रहे हैं। और जैसा कि मिथुन जी आपने कहा, आपने मेंशन किया कि कल जो हमारे साथ गोलकीपर जुड़े थे फ्रॉम साउथ लायंस, तो सौरभ जी काफी बेहतरीन प्रदर्शन उन्होंने दिया था, काफी बेहतरीन प्रदर्शन, क्योंकि उनका फोकस हट नहीं रहा था बॉल से। जिस तरह से वो सेव कर रहे थे बार बार स्कोर्स को, तो आज यही देखना है कि हमारे दोनों गोलकीपर्स कितने ज्यादा सजग रहते हैं, कितने ज्यादा फोकस्ड रहते हैं। साथ ही साथ हमारे मेंबर्स, टीम मेंबर्स यहाँ आप देख पा रहे हैं, सभी अच्छे से बॉल को पास कर रहे हैं। स्पेशली यहाँ मैं देख पा रही हूँ हमारे साथ आज जुड़े हैं वेस्ट रॉयल्स। वेस्ट रॉयल्स की तरफ से आज ज्यादा जुनून देखने को मिल रहा है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम बॉल इसी तरफ है। दे आर रियली ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट कि उनकी तरफ से ही एक गोल हो पहले, एक स्कोर हो पहले। पर वही देखना है कि फर्स्ट हाफ कौन लेता है, पहला स्कोर कौन करता है। और क्योंकि आज दोनों ही टीम्स में एक प्रेशर है, पर हाँ नो डाउट वेस्ट रॉयल्स का, क्योंकि ये तीसरा मैच है तो 2 मैच का एक्सपीरियंस उनको ऑलरेडी है। पर हाँ पिछला मैच क्योंकि वह हारे थे, तो उनकी तरफ से एक रहेगा कि हाँ आज का मैच वे डेफिनेटली जीते। वहीं अगर हम नॉर्थ पैंथर्स को देखें तो नॉर्थ पैंथर्स आज फुल्ली ट्राई करेंगे कि आज उनका ही दिन हो, उनका ही गोल पहले हो, ताकि क्योंकि उनका लास्ट मैच में हार गए थे, तो उनका इस बार का मैच, आज का मैच उनके लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। स्कोर कार्ड में उनको भी पता है कि आज का मैच अगर वह नहीं जीत पाए, यहाँ बहुत बेहतरीन कोशिश करते रहिए, क्या पता लक साथ दे जाए और हो जाए पहला आपका गोल। पर वही देखना है, कोशिश भी आपको सोच कर करना है। अभी आप कोशिश कर रहे हैं विदाउट एनी टारगेट, तो फिर नहीं हो पाएगा। वो टारगेट उनका सही था बट थोड़ा हाई हो गया वो बॉल, कोई बात नहीं। दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट। वही देखना है कि कौन पहला गोल करता है। मिल्टन जी, यूं तो आज का वेदर काफी बेहतरीन है, स्टेडियम बेहतरीन मिला है, क्या लगता है आपको? मुझे लगता है आज दोनों ही टीम काफी बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं आप देख पा रहे, बार बार मैं जो चीज मेंशन कर रही हूँ, वेस्ट रॉयल्स की तरफ ही ज्यादा बॉल पास हो रहा है और आप देख सकते हैं यहाँ फिर से वह ट्राई कर रहे हैं। क्या लगता है, क्या पहला गोल क्या वेस्ट रॉयल्स की तरफ से होगा? क्या लगता है आपको मिल्टन जी? Yes, today both the teams seems to be looking really strong and
I guess the West Royals are performing really good today, because it seems that they are showing their stamina and zeal to be, playing the game in such a wonderful manner. I think both the team, has the, energy and also the spirit of sportsmanship, and all of them seems to be looking really, picked up by good energy today, good vibe, positive vibe everywhere. And so, both getting opportunities, trying to shoot in the goal post, really, but no, it just went over the goal post at this point of time. But, I guess the pressure over there when you go to the D box out there, it becomes difficult, because you really need to focus and, shoot the ball inside the goal post, rather than, just shooting out in the air and not being able to score. Because such opportunities, will be rare to, find, and probably you may not be able to get another opportunity or so. So it's always important that you keep your eyes focused and make sure that you score every opportunities that you find at any point of time it is given to you. And so I guess the overall game, it's really looking nice today. Cool, calm, and steady in the beginning, and maybe it will take another few minutes more time so that they can go ahead and pick up the speed and energy so that they can make their first score or their first score on the board. And so I'm sure both Soromita and Mithun will also agree to me that both the team looking really strong and steady, really cool, picking the ball, keeping the ball in their legs, really nice and cool. And so I guess this time it is important that you make your first score in the first half and lead the whole team to victory. That's what you can say. And probably that's the goalkeeper picked the ball really nice in there. And so it's nice to see such wonderful game every time. डेफिनेटली मिल्टन जी, आज सच में लगता है कि कुछ जमने वाला है। मैं दोनों ही टीम की कोशिशें देख पा रही हूँ, दोनों ही टीम, क्या बात, व्हाट अ परफॉर्मेंस दे आर गिविंग, लाइक वाओ, बहुत बेहतरीन प्रदर्शन यहाँ देखने को मिल रहा है दोनों टीम्स की तरफ से। यहाँ मैं अगर नॉर्थ पैंथर्स को देखूँ, 2 बार उनका ट्राई किया उन्होंने, पर दोनों ही बार चूक। और वहीं अगर मैं वेस्ट रॉयल्स की तरफ से देखूँ तो पासिंग अच्छी हो रही है, पर वही बात है कि आपका डिफेंस भी उस हिसाब से आपको मेंटेन करना है। आप अगर नॉर्थ पैंथर्स को देखें तो पूरे स्टेडियम में नॉर्थ पैंथर्स इधर से उधर कहीं ना कहीं से अपने आप को दर्शा रहे हैं एवं बॉल पास करने की कोशिश जारी है। पर वेस्ट रॉयल्स का ये थोड़ा सा है कि वेस्ट रॉयल्स अगर थोड़ा सोच के खेले, थोड़ा और टीम वर्क दिखाए तो शायद पहला गोल उनका हो सकता है। वहीं नॉर्थ पैंथर्स को थोड़ा अपने ऊपर ध्यान देना है, थोड़ा अपने टारगेट के ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि आपका 2 टारगेट मिस हुआ, वो भी अच्छे टारगेट्स आपके मिस हुए। और यहाँ एक लॉन्ग शॉट, आज इस मैदान में काफी ऊंची तरह से बॉल जा रहा है, गेंद जा रही है, अलग तरह से आज ये गेम देखने को मिल रहा है। एंड नो डाउट आई एम सुपर एक्साइटेड कि कौन सबसे पहला गोल दागेगा, कौन सबसे पहला गोल करेगा। धन्यवाद देना चाहते हैं हम TTAADC को, जिनके द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया कि फुटबॉल को हमें एक प्लेटफॉर्म देना है। यूं तो हम देखते हैं क्रिकेट को एक प्लेटफॉर्म मिलता है, बैडमिंटन, टेनिस, पर फुटबॉल इस अभी शायद एक गोल हो सकता था। आपको देखना है कि गोलकीपर वहां है, वही गोल कीजिए जहां गोलकीपर की नजरें ना जाए, क्योंकि आपको पता है गोलकीपर फोकस्ड रहेंगे, वो नहीं चाहेंगे कि गोल हो, उनका काम ही है ये, वही आपको देखना है। वही बात है कि हम फिर से धन्यवाद देना चाहते हैं TTAADC को। हमें पता है TTAADC के द्वारा ये जो इनिशिएटिव लिया गया है बहुत बेहतरीन इनिशिएटिव है, फुटबॉल को इतना आगे लेकर जाने का, फुटबॉल को एक प्लेटफॉर्म देने का एवं प्लेयर्स को एक प्लेटफॉर्म देने का। हमारे इसी स्टेडियम से क्या पता कोई इंटरनेशनली नेशनली तक जाकर फुटबॉल को एक नया रूप दे, नया जगह दे।
तो आप देख पा रहे हैं यहाँ मेरी नजरें सिर्फ बॉल की तरफ है। आप देख रहे हैं किस तरह से बॉल पास हो रहा है, कभी वेस्ट रॉयल्स को छीन ले रहे हैं तो कभी नॉर्थ पैंथर्स। एंड नॉर्थ पैंथर्स की तरफ से, जैसा कि मैंने कहा, नॉर्थ पैंथर्स आपको देखना है, आपके जो अटैकर्स हैं आपको देखना है। अटैकर्स आप वहीं रहिए ताकि आप अटैक कर पाए, आपके जो प्लेयर्स हैं वो आपको पास करने की कोशिश कर रहे हैं, पर आपके टीम मेंबर अगर वहां नहीं रहेंगे तो कैसे आप अटैक करेंगे, वो आपको देखना है। और यहाँ शायद एक और गोल हो सकता था। वही बात है, हमारी डिफेंस काफी स्ट्रांग है। वेस्ट रॉयल्स दे आर डूइंग ग्रेट, वहीं नॉर्थ पैंथर्स भी अपना पूरा दे रहे हैं। मिथुन जी, काफी डर गई हूं मैं, काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, शॉक्ड हूँ, अच्छा लग रहा है, वहीं एक डर है क्या होगा। क्योंकि जहां में एक तरह से होता है ना कि किसी मैच में हमें लगता है कि ये टीम शायद और ज्यादा अच्छा कर सकती है, पर आज ये दोनों ही टीम इतने ज्यादा जज्बा दिखा रही है, इतना बेहतरीन कर रही है कि मैं नहीं बोल पा रही हूँ कि ये टीम और अच्छा कर सकती है, क्योंकि दोनों ही टीम बेहतरीन कर रही है। और देखना ये है कि कौन पहले गोल दागेगा। क्या लगता है आपको? सुरमिता, देखिए पॉइंट्स टेबल में अभी भी वेस्ट रॉयल सबसे ऊपर है इन दोनों टीम में, क्योंकि उनके पास 3 पॉइंट्स है और उनके पास 1 पॉइंट है। तो यहाँ पर नजर रहेगी वो प्लेयर पर जिन्होंने उससे पहले इसमें गोल किए थे। तो अगर नॉर्थ पैंथर्स की बात करें तो श्याम पुया है इसमें, जो अपना पहले 2 गोल दे चुके हैं। तो नजरें तेज उन पे रहेगी सभी दर्शकों की जो उनके चाहने वाले हैं। और देखिए भाई, जब मौका बन सकता है, मौका दे दिया है। नहीं, यहाँ पर डिफेंस देखिए कितना तगड़ा है, सीधा बूट के नोक से उठा के दिया है बॉल को। और यहाँ पर जब हम पॉइंट टेबल की बात करते हैं ना, तो आज पॉइंट टेबल की लड़ाई होगी। अगर नॉर्थ पैंथर्स यहाँ पर अच्छा खासा खेल लेती है तो वेस्ट रॉयल को नीचे धकेलने की क्षमता रखती है, क्योंकि नॉर्थ पैंथर्स के पास अभी 1 पॉइंट है, वेस्ट रॉयल्स के पास 3 पॉइंट है। तो वेस्ट रॉयल्स को पूरी कोशिश करनी पड़ेगी आज। अगर वो जीतती है तो पॉइंट टेबल में ऊपर चली जाएगी वो, क्योंकि नॉर्थ पैंथर्स भी काफी सक्षम है और वो जानते हैं वो उनकी परिस्थिति क्या है और उसके अनुकूल ही वो खेलेंगी। अगर हम बात करें श्याम पुया जैसे जो प्लेयर है, उसमें परमरामन है, वनलाल कीमा है, जाबेद डार्लोंग है, गिने चुने प्लेयर है जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है नॉर्थ पैंथर्स के लिए। जिसके विरुद्ध खेला था वो टीम भी मजबूत टीम थी, जिन्होंने 5 दागे थे। तो उन टीमों से लड़के आगे यहाँ पर वेस्ट रॉयल के साथ, तो शायद आज मामला बराबरी पर है। मैं ज्यादा किसी को वो तोल मोल नहीं करूंगा, लेकिन आज मेरे को ऐसा लगता है कि दोनों ही बराबरी पर। देखिए रफ्तार, यहाँ पर देखते हैं आगे बढ़ पाती है कि नहीं, क्या यहाँ से बॉल छीन पाएगी जी। देखिए हाँ, पैंथर्स को देखिए किस तरह से वहां पर उनका डिफेंड है। और मिल्टन जी, खामोशियां कुछ बताती हैं इस मैदान में कि किस तरह से सबके लफ्ज बंद है। मतलब खेल का प्रदर्शन बराबरी पर है, कोई किसी से कम नहीं, कोई किसी से ज्यादा नहीं। क्या कहेंगे आप? Correct, absolutely, because both the teams looking really strong, like I said even in the beginning, because both the team seems to have a really young and energetic player over here today, and it's the North Panther and the West Royals today. It's really awesome to see the game the way they've been playing. They shot it in the air. It's not a goal yet. It's awesome to see the way the player from the West Royals have been playing. Imran Khan, the 20 number jersey, who's tried shooting the ball into the box a few minutes back. It's really nice to see the way he tried shooting it in, but there could have been an easy pass if there would have been another player or so in the boxes, and so the West Royals could have achieved the first goal in the first half itself. And what a lovely pass over there, and nicely tackled between the players. Nice and awesome to see the players, but somewhere or the other, the North Panthers not having a really strong defender also, and the ball is usually going into the box, but somehow they could save, and I guess the goalkeeper out there seems to be really active, even if the defenders were not present around his area over there. So that way, it is nice to see the way both the teams are playing today, passing the ball, short passes, sometimes in the air, shooting the ball into the midfield, and the left wing of the
West Royals today looking really smart, tackling the ball between the players. Nice and steady. And there could be a dangerous situation over there. Let's see what happens. The ball has been passing to the box. Let's see, the goalkeeper has pushed the ball there. Beautifully tackled the ball and shot again. Short passes, and nice it is to see the left wing picking the ball, and the midfielder over there, 21 number jersey from the West Royals. But somewhere or the other, the captain over there seems to be having really a heavyweight situation, and so there's been a call from the referee over there. The referee trying to, talk to the players, not so that there be no any other untoward situation between the players. And so far so good, the players have been playing in almost every game, and there's nothing of that sort that there's been a situation where the referees have to come in control of the bigger situation. So it's nice to see the way the players are playing. And beautifully shot, and that could be okay. The goalkeeper saved the ball, and it's really nice and beautifully shot over there. Tao tay bulsa sing tay bishi tek lailia, but dak tikino sing tinin isini tournament sing chengir laika, and tabo pray 20 minutes pass. And Belay Naito to play tinini players of Tungaito Borok, North Panthers versus West Royals. North Panther ni players of Belay Naito to play to green color jersey chum laja, and West Royals ni Kormo chumza. Belay Naito to play tinini play gameplay Borok play to teamwork. Belay Naito kuni team ni bukaktino short passes with Tungaito goalkeeper or Belay pan short player in the air, and midfielder soiga. Taysan high Thaising on Nuiman Khananok, player number 20 Imran Khan, Belay can have to play should play pass play and goal play and claim Malia. Piawaro Taysan high referee Kanikasaro play interrupt play and let's see what happens. And ama high situation the pro hayo Belay ke critical in it karon referee no the dinner properly tackle claiming referee ni yak take yellow card no chances to, and so or free kick really North Panthers on the and nice shot in the air. Wow, what a beautiful shot, and the defender out there a shot it backward or out and North Panthers station high throw in like a, and like short passes for a great to me to night of play or long passes to it to me hoito borok काम के टैकल खाई थंगे मंगला आबन बागे न borok short passes रुई goal खाइना नहीं चाइटो लाई तोंगे जाते energy वो save नहीं ते goal लुक खाई माने आवा है के borni tactics तिनी जे नुकसान बने. And so ani logo to tini kani Hindi commentator borok ke sorum ita bhumik tai tongo mithun das. And so borni kokti sing teo kane mane Hindi commentary Belay Naito to play borok commentary bok play tongo. And so aro goalkeeper to isain hai West Royals ne bakti ke play ball romi naka. अगर आप एग्रेसिव हो रहे हैं तो सही तरह से होइए, सही जगह में सही काम में लगाइए उसको, क्योंकि जो मैं देख पा रही हूँ नॉर्थ पैंथर्स अपना बेहतरीन दे रहे हैं, पर आप जो टारगेट ले रहे हैं ना वो शायद आपको सोचना है, आपके टीम वर्क में आपको काम करना है. मैं अगर आप देखूं हमारे ग्रुप बी के पूरे स्कोर कार्ड को, तो हमारे ग्रुप बी में अभी सबसे ज्यादा जो टॉप पे है वो टीम है गोमती ग्लेडिएटर्स, इसके बाद है ढलाई एंटलर्स, इसके बाद है वेस्ट रॉयल्स और इसके बाद है नॉर्थ पैंथर्स. तो 5 टीम्स में ग्रुप बी के इन 5 टीम्स में आप 4th नंबर पे हैं, दैट मींस आपके ऊपर प्रेशर है. अब आज का अगर आप गेम जीतते हैं तो आपका स्कोर बोर्ड में आपका टीम ऊपर आ जाएगा, तो वो आपको भी सोचना है, सही तरह से सोचना है. मैं बार बार सेम ही चीज बोल रही हूँ. नॉर्थ पैंथर्स का एक चीज आई नोटिस राइट नाउ कि दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट,
पर जब अटैकर्स की वहां जरूरत होती है तब वहां कोई नहीं रहता, तब वहां जो जिस जगह में उनकी जरूरत है वहां कोई नहीं रहता है, जिस कारणवश शायद उनका वो शॉट नहीं हो पाता है। और गोलकीपर ऑलरेडी चौकन्ने हैं, तो गोलकीपर डेफिनेटली चाहेंगे कि वह रोक ले गोल को। वहीं अगर हम वेस्ट रॉयल्स को देखें तो वेस्ट रॉयल्स अपना पूरा दे रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, एवं उनका डिफेंस बेहतरीन है, उनका डिफेंस अच्छा है। तो आपको अभी अपना अटैक सही करना है, साथ ही साथ अपने डिफेंस को भी सोचना है। यहाँ बहुत सारी स्ट्रेटजीज काम में आते हैं। हम सोचते हैं फुटबॉल सिर्फ पैरों का काम है, नहीं, यहाँ पैरों के साथ साथ हमें बहुत सोचना पड़ता है, बहुत सारी स्ट्रेटजीज लगानी पड़ती हैं। और क्योंकि अभी तक कोच ने एक भी प्लेयर चेंज नहीं किया है, दैट मीन्स उनको भरोसा है, उनको अब तक उनके सारे प्लेयर्स पे भरोसा है, दोनों ही टीम के कोचेस को अपने प्लेयर्स पे भरोसा है कि नहीं, अभी प्लेयर चेंज करने की जरूरत नहीं है, दे आर डूइंग देयर ग्रेट, they are doing well. So यहाँ अभी देखना ये है क्योंकि अभी फर्स्ट हाफ का लगभग हाफ हो चुका है। फर्स्ट हाफ का अगर हाफ हो गया है और एक भी स्कोर नहीं हुआ है किसी भी टीम के द्वारा, तो ये एक गुड पॉइंट है, गुड पॉइंट है दोनों ही टीम के लिए। क्योंकि अगर अभी आप स्कोर लेते हैं तो आप दूसरे टीम, आपके अगेंस्ट टीम के ऊपर आप एक प्रेशर दे देते हैं। तो आपको भी करना है, बेहतरीन करना है, आपका डिफेंस अभी आपको स्ट्रॉन्ग रखना है अगर आपको जीतना है। तो दोनों ही टीम को अगर ले तो यहां एक प्लेयर चेंज, 22 इन एंड 18 आउट। 22 हबर्ट देव वर्मा जी अभी अंदर जाएंगे। प्लेयर चेंज की जस्ट बात हुई और यहाँ प्लेयर एक बार चेंज, 22 प्लेयर जाएंगे इन मैदान के अंदर और 18 नंबर बाहर, 18 नंबर बाहर। मैक्सॉन देव वर्मा जी जाएंगे बाहर। यहाँ बॉल है अब वेस्ट रॉयल्स के पास। तो अभी आपको गेम समझ गए हैं अभी आप शायद, क्योंकि नॉर्थ पैंथर्स का आप स्ट्रेटजी समझ गए हैं, वेस्ट रॉयल्स का स्ट्रेटजी समझ गए हैं, नॉर्थ पैंथर्स। अब आपको दिखाना है गेम, क्योंकि फर्स्ट हाफ अगर खत्म हो जाएगा और दोनों का ही स्कोर 0 रहेगा तो एक रहता है कि हाँ अब प्रेशर नहीं रहेगा, पर वही बात है डिफेंडर्स आपको स्ट्रॉन्ग रखने हैं या फिर गोल करना है। मिथुन जी, एक्साइटिंग लग रहा है गेम, बहुत एक्साइटिंग लग रहा है। अब लग रहा है कि कुछ हो सकता है, क्या लगता है आपको कि क्या हो सकता है? क्योंकि देखिए अब देखिए आज गेंद हवा में उड़ रही है, आज हेडशॉट जितने दे रहे हैं और जितने भी लेग का काम हो रहा है, लेग का जितना काम हो रहा है वो सारा ऊपर से जा रहा है। कैसा लग रहा है आपको ये गेम और कैसे लग रहा है आपको दोनों टीम्स का जज्बा? देखिए सौरमिता, जितनी देर का खेल चला है अब तक, यहाँ से तो पलड़ा मुझे वेस्ट रॉयल्स का थोड़ा सा ठीक लग रहा है। 60 एवरेज बता दे उनका, जो ठीक है, अच्छा अंदर करते आता फॉरवर्ड खेल रहे हैं। जैसे यहाँ पर इनके 2 प्लेयर हैं, इमरान और वहां पर बीरू देव वर्मा, लेफ्ट और राइट में, वो बहुत अच्छे आगे जा रहे हैं। उनके पास अगर गेंद सही आ जाए ना बॉल, तो अच्छे पासेस के थ्रू, जैसे इस तरह से देखिए किस तरह से लेफ्ट विंग यूज करके अपना आगे बढ़ रहे हैं। तो बीरू देव वर्मा और इमरान जो 2 साइड में हैं, वो अपना जो गढ़ है वो बना के रखे हैं। और वहां पर जो प्लेयर अभी चेंज हुआ है ना, उसका भी खासा फायदा, हबर्ट जो गए अंदर, उसका भी एक फायदा तो मिलेगा शायद वेस्ट रॉयल्स को, क्योंकि रणनीति बाहर से तय होकर अंदर जाती है। हमेशा फुटबॉल में रणनीति जो बाहर से तय होती है, अंदर कुछ है, क्योंकि रणनीति वहां से कोच तय करके भेजता है। तो हबर्ट अगर अंदर गया है तो जरूर कुछ रणनीति के साथ गए हैं। अगर हम पैंथर्स की बात करें तो पैंथर्स में ऐसे प्लेयर है, पद्मारन रियांग, वनलाल, फिर जबर डारलॉन्ग, ऐसे प्लेयर है, नामचीन प्लेयर है, जिन्होंने पिछला मैच भी बहुत अच्छा खेला था। तो नजरें रहेंगी इन पर अब रफ्तार देखिए वेस्ट रॉयल्स की, किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। बहुत अच्छा अब तक वेस्ट रॉयल्स का जो हम कहेंगे कि जो परसेंटेज है ना, 60 एवरेज आगे बढ़ने की रफ्तार, वो उनकी है। और 40-45 जो है ना, मैं मान के चलता हूँ कि पैंथर्स की है। पैंथर्स भी अच्छा खेल रही है, इसमें आप अनुमान नहीं लगा सकते अभी, क्योंकि फिर भी डामाडोल है, कभी भी बाजी पलट सकती है, कोई भी गोल किसी के भी पक्ष में आ सकता है। तो आप जो खिलाड़ी हैं उनको भी देखिए, एक ही कद काठी के सब एक प्लेयर हैं, और नौजवान बच्चे जो इतने अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं अब तक इस मैच में, जो ये सुपर लीग चल रहा है। एक लंबी एक यहाँ पर 17-11 नंबर शायद, देखे कुछ और, जी हाँ,
अब शॉट देखते हैं कितनी दूर, कितनी रफ्तार में आगे बढ़ती है रफ्तार। अब शॉट देखिए वेस्ट रॉयल्स का, काफी उछाल के मारा है वहां पर। ठीक है, 20 नंबर के खिलाड़ी लेफ्ट विंग को मिल गया है, क्या इसको काम पे लगा पाएंगे? जी, अच्छा कैरी कर रहे हैं यहाँ पर, ड्रिलिंग अच्छा हो रहा है यहाँ पर। पैरों का देखिए जो इनसाइड आउटसाइड है किस तरह से यूज कर रहे हैं इसको। अच्छा हेड यहाँ पर, लेकिन मौके से चूक गए वहां पर। 22 नंबर के खिलाड़ी थे वेस्ट रॉयल्स के, अगर जगह पे सही ठिकाने पे रहते ना तो सही जगह पर हेड गिरा था। वहां पर अगर रहते तो डी बॉक्स के कॉर्नर से ही, डी बॉक्स के कोने से शॉट होता सीधे गोल पोस्ट पे। मौका नहीं चूकना है आपको, क्योंकि मौके बार बार नहीं आते, क्योंकि ये जो मसला है वो कभी भारी हो सकता है। आपको जो सफलता मिलेगी वो आपको चुनौतीपूर्ण मिलेगी, लेकिन उन चुनौतियों को सामने काम पे लगाना है। देखिए फिर से पैंथर्स के पास वहां पर मौका जाता हुआ, ये मौके को काम पे लगा पाते, क्योंकि श्याम को यहाँ पर नजर रहेगी क्योंकि उन्होंने 2 गोल दागे थे इससे पहले। वो एक अच्छे प्लेयर हैं और देखते वो टीम उनका किस तरह से उनका सहयोग करती है। यहाँ पर बड़ा, चलिए फ्री किक शायद यहाँ पर पैर लगाए 13 नंबर के जर्सी को पैंथर्स के। कुछ बात कर रहे रेफरी के साथ, कोई नफा नुकसान नहीं, सब ठीक, खेल आगे बढ़ रहा है। कोई अभी तक उतने बदलाव नहीं हुआ, एक हबट का बदलाव हुआ है तो ज्यादा चेंजेस नहीं होने चाहिए, क्योंकि 11 जो खिलाड़ी हैं वो नामचीन खिलाड़ी हैं, आपके बचे हुए छाने हुए खिलाड़ी हैं। बाकी जो बाहर बैठे हैं वो भी अच्छे हैं, उनको रखते हैं हम इसलिए। और यहाँ पर देखिए मौका मिलता है कि नहीं? जी नहीं, वहां पर अच्छा डिफेंस। वेस्ट रॉयल सतर्क है अभी, देखिए वहां पर 3-3 खिलाड़ी को डिफेंस के लिए रख दिया डी बॉक्स के अंदर। अगर आपने इसी तरह की रणनीति अपनाई है तो मुश्किलों का सामना। देखिए फिर से वहां पर अच्छी शॉट जोर से लगी, बॉल देखिए कितनी दूर उछल के आई। तो ये रफ्तार जो है ना, ये आगे लेके जाएंगे तो भी आपको गोल कर पाएंगे। क्योंकि अभी डिफेंस देखिए पैंथर्स का, पैंथर्स होगी लेफ्ट विंग आगे जा रही है, लंबा खेला है। ओ अच्छी शॉट थी, कारगर साबित नहीं हुई। मतलब ऐसा माने कि तलवार जो है आपके नाक को छूकर गई है पर कटी नहीं। बहुत अच्छी शॉट। सौरभिता क्या होगा? फिलहाल गोल हो। मिल्टन जी सुपर एक्साइटेड क्या होने वाला है, क्योंकि देखिए फर्स्ट हाफ में अभी तक एक गोल नहीं हुआ है, एक भी गोल। और अभी तक ये इतने मैचेस में एटलीस्ट अभी तक एक गोल हो जाता है, स्पेशली फर्स्ट हाफ में। अगर एक गोल आपका नहीं है तो दोनों ही टीम के लिए प्लस पॉइंट है, क्योंकि एक गोल करते ही आपके पास एक एक एडवांटेज आ जाता है। बट स्टिल क्योंकि फर्स्ट हाफ में एक भी गोल नहीं हुआ है, मतलब दोनों ही टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ देखिए एक लंबा शॉट। मिल्टन जी क्या कहेंगे आप? देखिए गोलकीपर कितने सतर्क है। What a save out there by the West Royals. The goalkeeper out there is Gautam, and I'm sorry, the goalkeeper is Shantu Deeparma, who saved the ball out there. Really nice and steady, kept it cool and picked the ball really safely from the score. And so players like Hriday and also Bishu Kumar and also Golmai, have played really awesome game. And Imran out there running for the ball, goal post. Let's see what happens. He could make the goal, but this could have been really nice. Jack Singh really tried his best. If the ball could have gone really, a little swing out there could have made the score. But, the goalkeeper of the North Panthers really kept it cool and saved the ball over there. Nice and steady. And so it is really, wonderful to see such kind of a match in Komalang Stadium today. And so, people are watching us live all over, and again and again, it is needless to say that there are so many new, youngsters who are coming up with such a good talent in a sports like football. And so I guess there will be many more that will come up and have their opportunity to play even for the state level and also in the national level later on in the days to come. And so this is how the youngsters are being, trialed and being chosen from such matches. The moment you see the players
doing well. Probably, you know, this could be a dangerous situation. And there is a goal from the North Panthers. The first score of the match of today here at Komalung Stadium. What a match and what a beautiful shot before the first half. And this could be a pressure for the West Royals at this point of time. And so this has been shot by the left wing striker from the North Panthers. And so, you know, before the first half, you know, it is always important to make your first score in the first half and, you know, put a pressure for the next team so that, you know, they can, you know, win the game or, you know, at least put pressure for the other team in the game. And this also comes with a very nice shot from the team of North Panthers. That was amazing. What a goal it was. मुझे लगा नहीं था वैसे कि फर्स्ट हाफ में एक भी गोल होगा किसी की तरफ से, पर नॉर्थ पैंथर्स के जज्बे को मानना पड़ेगा. शायद एक इंजरी, शायद. तो यहाँ नॉर्थ पैंथर्स की तरफ से एक गोल एंड सच में बढ़िया बात है, पर वहीं एक प्रेशर आ गया है वेस्ट रॉयल्स के ऊपर, क्योंकि अब वेस्ट रॉयल्स आपको कर दिखाना है. अब आपको एनी हाउ एक गोल करके टाई में जाना है, और अगर नॉर्थ पैंथर्स ने एक और बढ़ोतरी कर ली तो शायद आपके ऊपर डबल प्रेशर पड़ जाएगा. यहाँ शायद एक सीरियस इंजरी है. वी विश कि ये सीरियस इंजरी ना हो, क्योंकि अगले और भी मैचेस बचे हैं और ये नॉर्थ पैंथर्स का जस्ट सेकंड मैच है. There goes the signal from the referee, and nicely shot in the air. Emosa from the North Panthers just made a score, 60 number jersey, who is from the midfield, and that was a nice shot that was, you know, put in to the goal post. And you know, that's how the game should be. You know, you playing really soft and steady, quiet and calm, you know, keeping your cool and taking the ball safely with you and putting the ball into the goal post. And so Emosa did a really awesome job on the part of the you know, North Panthers this time. And there are, needless to say, there are many more players. Laram Puya also in the midfielder or mid defender, and also you know, Padaram Riang, and also Sampuya, the goalkeeper. Needless to say, the way he has been, you know, saving the ball for the team. And it's you know, it's only another 5 minutes left to go, and you know, the West Royals are in pressure, heavy pressure at this point of time. Or else, you know, there could be anything that can happen in the last few minutes as well. You never know how the game changed, because football is such a game where you never know how, you know, where the goal, you know, happens. There's going to be, you know, a break in just a while, and so we hope that the West Royals also make their first score and bring it 1-1, so that, you know, the team can actually be 1-1 and fight for their winning score in the next half. मिल्टन जी, एक चीज तो माननी पड़ेगी कि जो ये अभी जो गोल हुआ था नॉर्थ पैंथर्स के द्वारा, नॉर्थ पैंथर के जो प्लेयर नंबर 16 ने जो कर दिखाया, यहाँ एक चेंज ऑफ द प्लेयर. सिर्फ फर्स्ट हाफ के सिर्फ 2 मिनट बचे हैं. अब इस 2 मिनट में अब देखना है, 2 मिनट में शायद ही संभावना है कि वेस्ट रॉयल्स एक और गोल करे, शायद ही संभावना है. पर वही बात है, नॉर्थ पैंथर्स ने कर दिखाया, क्योंकि उनका जो शॉट था, मैं बार बार बोल रही थी, दे आर मिसिंग द टारगेट. शायद वो दिमाग में रहा उनका. और जो प्लेयर नंबर 16, जिस तरह से उन्होंने सोचा कि यहाँ है हमारे गोलकीपर, अब इस साइड से करना है गोल, वो बेहतरीन था. वही चीज, वही स्ट्रेटेजी अभी लगानी है वेस्ट रॉयल्स को.
अभी अगर वेस्ट रॉयल्स अपना वही सेम स्ट्रेटजी वो पहले से जो स्ट्रेटजी वो ले रहे हैं वही लगाए तो शायद नॉर्थ पैंथर्स को ऑलरेडी वो पता है। तो यू हैव टू बी चेंजिंग, यू हैव टू चेंज योर पोजीशंस, आपको थोड़ा देखना है, थोड़ा चेंज करना है। और इस बार आपका टारगेट जो आप सेट करेंगे जैसे नॉर्थ and good coordination between the players, it can always make a difference in the game like football. And you know the striker over there, Baitang, also is there, and you know this they really can make a difference if they really have a good communication. So the game has been called off for the first half, and it's just 1 for the North Panthers and 0 for the West Royals for now. But you never know, in the next game, probably in the next half, there could be a difference, and they might be able to come up with a good number of scores in the next half. So players and also the audience, keep watching us live at TTAADC official page. Hello. Padingga sing tabuk rasamong tangsak nalayan dejain hai Komolung folk musical college ni bahag tikai balai ke knata to kaisa rasamong sini bagai present kaja gitu. So ladies and gentlemen, let's listen to a very beautiful number from the Komolung folk musical college at this afternoon, and a small break that we are going ahead with. Hello.
Ormana mecene Tanzanay saipanya Ormana mecene Tanzani mante kapanga Tanzani wate kere changada Tanzani mante kapanga Tanzani wate kere changada Maya makolote makala Tanzanay saipanya Ormana mecene Tanzanay saipanya Ormana mecene Ormana mecene Ormana mecene Ormana mecene Ormana mecene तो आपका सभी का स्वागत है फिर से लाइव पर। तो मैं आपको आज जो हमारे मैचेस हुए हैं ग्रुप ए और ग्रुप बी के, उसके कुछ ताजा तरीन हालात जो है पॉइंट्स टेबल के वो बता दूं। वेस्ट बी किंग्स 7 पॉइंट्स पर है, सिपाहीजाला टाइगर्स अभी तक जो अनुमान है वो 3 पॉइंट्स पर है। ओनुकुटी चैलेंजर्स तीसरे नंबर पर, साउथ लायंस चौथे नंबर पर, गोमती टस्कर्स आखिरी पायदान यानी 5 नंबर पर। ग्रुप बी पर गोमती ग्लेडिएटर 9 पॉइंट्स, धौलाई एंटलर्स 3 पॉइंट्स, वेस्ट रॉयल्स 3 पॉइंट्स। नॉर्थ पैंथर्स आज अगर खेलेगी तो अपना जगह बना लेगी क्योंकि उनके 1 पॉइंट्स अभी हैं उनके खाते पर। और ख्वाई वॉरियर्स जिन्होंने अभी अब तक खाता नहीं खुला है, तो आशा करते हैं कि इनके खाते खुलेंगे और एक एक को ऐसे ही जैसे आज का मैच हो रहा है, जैसे नॉर्थ पैंथर्स आज 1 गोल अभी तक कर चुकी है। अगर ये मैच में कुछ भी हो सकता है, इसके बाद 45 मिनट का खेल बचा हुआ है। अगर वेस्ट रॉयल जीतती है तो वेस्ट रॉयल आगे अपना 1 पॉइंट जमा लेगी, जहां पर वो 4 या 5 पॉइंट अपने खाते में कर लेगी वो, क्योंकि सारे पॉइंट्स को वहां नजरअंदाज नहीं कर सकते। वो आगे 1-1 पॉइंट कर कोशिश करेगी, 1-1 पॉइंट अपने खाते में जमा ले। तो अभी देखना होगा कि जिस तरह से अमोसा 16 नंबर के जर्सी नॉर्थ पैंथर्स के जिन्होंने गोल दागा है, वो बहुत ही तरकीबन गोल जिसको कहते हैं हम, जहां पर कोई डिफेंस नहीं था, सीधा गोल को उनके लेफ्ट विंग से होके आके आप बॉक्स के कोने में वो शॉट खेल रहे हैं।
बेहतरीन शॉट, बहुत अच्छा फायदा लिया वहां पर वेस्ट विकिंग्स के थोड़े से वीक पॉइंट का। आशा करते हैं अभी कोच के साथ जो भी बातचीत हुई होगी इनकी वेस्ट रॉयल्स का, तो वेस्ट रॉयल्स के कोच ने जरूर उन्हें कुछ बताया होगा कि अगर नॉर्थ पैंथर्स को अगर रोकता है, क्योंकि वो जिस तरह से एक पैंथर का रूप धारण कर चुके हैं अब तक फिलहाल, तो वेस्ट रॉयल्स को हल्दी चंदन की घाटी से उठकर अब वार करना है। अब उन्हें पीछे नहीं रहना है। ये हल्दी जो पहनी है ना, वो हल्दी घाटी का युद्ध दर्शाता है, तो युद्ध लड़ना है आपको और आगे जाना है। और ये पैंथर्स जो एक कर चुकी है, आपको 2 दागने हैं। आपका इरादा 2-3 का होना चाहिए, क्योंकि आपको अभी ऐसा मानो कि आपको रफ्तार जो है ना वो कम नहीं होनी चाहिए। आपका कॉन्फिडेंस लेवल अभी लो नहीं होना है। 45 मिनट बहुत है आपके पास। अच्छा फॉर्मेशन बनाइए, अच्छा मैनेजमेंट कीजिए, टीम को मैनेज करके अच्छा आगे जाइए और देखिए कि आपका डिफेंस आपका कितना साथ देती है स्ट्राइक का। और गोलकीपर को वहां थोड़ा एक्टिव रहना है अभी, क्योंकि सतर्क वो रहेंगे। क्योंकि जल हमने सौरभ त्रिपुरा को देखा था, हम कल सात चांद पे खेले गए थे। सौरभ त्रिपुरा अब तक मैंने जितने मैच देखे हैं ना, गोमती ग्लैडिएटर्स ठीक ठाक चलो, लेकिन कल उस लड़के का छोटा सा कदकाठी का लड़का है सौरभ त्रिपुरा, बहुत ही अच्छा गोलकीपर। मैं आप खराब है मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन कल जो उसका जज्बा देखा ना, एक्टिवनेस, एनर्जी लेवल देखिएगा गोल पोस्ट पर। आलसी वाला काम नहीं है, गोल पोस्ट पर एक्टिव रहना ना वो बंदे से सीखे कोई। तो मैं चाहूंगा वेस्ट रॉयल्स अभी अपना प्रदर्शन सामने लाए, क्योंकि आपसे आशाएं उम्मीदें आपके दर्शकों के, आपके चाहने वालों की बंधी है। पैंथर्स 1 गोल कर चुकी है, उनका अभी आगे का जो होगा वो कि 1 गोल और करे तो प्रेशर क्रिएट करे, और प्रेशर बनाना चाहेगी पैंथर्स वेस्ट रॉयल्स पर, और वेस्ट रॉयल्स को उस प्रेशर को दबाने के लिए अभी गोल करने होंगे। तो करो या मरो की परिस्थितियों में वेस्ट रॉयल्स, नॉर्थ पैंथर्स भी यहाँ पर थोड़े से नाखुश होने होंगे इनको, क्योंकि उनके खाते में अभी 1 पॉइंट है। आज जीते हैं तो पॉइंट्स आएंगे उनके खाते पे, तो वेस्ट रॉयल्स को वो टपक सकती है। वो पूरे एवरेज के हिसाब से देखेंगे, जहां पर सारे चीजों को मिला के पॉइंट्स मिलते हैं, क्योंकि उसमें फाउल होता है, उसमें आपने कितने कार्ड्स लिए हैं, येलो कार्ड, रेड कार्ड कितने मिले, उस हिसाब से। तो यहाँ पर जो फॉर्मेशन है शायद 3-2-3-4, हाँ पैंथर्स का यही फॉर्मेशन है जी, नहीं हाँ 3-3-3-3-3-4, जी हाँ 3-3-4 का फॉर्मेशन है। खतरनाक फॉर्मेशन है, अच्छा है। अभी वेस्ट रॉयल्स का देखते हैं जी। वेस्ट रॉयल्स ने 4-2-4, बढ़िया, ये दिमाग सही लगाया उन लोग ने, अच्छा फॉर्मेशन बनाया। देखिए 4-1-4, बढ़िया फॉर्मेशन है। 5-5 का फॉर्मेशन, अटैकिंग फॉर्मेशन है ये। अब वेस्ट रॉयल्स के कोच ने कुछ बता के ही भेजा है अंदर, मिस्टर संप्राय देबबर्मा। कोच ने कुछ बोला है उनको कि आप जाइए और वो रफ्तार, वो फॉर्मेशन पकड़िए। लेकिन पैंथर्स पास देखिए, हल्के पैरों से जो पास खेलते ना करीब, देखिए बहुत 17 नंबर के जर्सी को पास, यहाँ पर पैंथर्स वही अटैकिंग और सीधा गोल पोस्ट पर, लेकिन वहां पर सतर्क लाजारमा। बहुत अच्छी बात यह है कि पैंथर्स की अब तक कि उन्होंने वो हाल नहीं छोड़ा है। उनके हाथ में जो जिम्मा उन्हें दिया गया है ना, हर एक प्लेयर को बखूबी निभाया है। वो पासेस, वो जो गोल हुआ था वो भी अच्छा पासेस के दौरान ही हुआ था। और ये पासेस देखिए कितना उस फॉर्मेशन को काम पे लगाया है। जो 4-4 का फॉर्मेशन है, 5-5 का फॉर्मेशन है, उसको काम पे लगाया है। छोटे छोटे पासेस देखिए, छोटे छोटे पासेस खेल रहे हैं, मतलब ये तरीका होता है। लंबा एक पास खेला है डी बॉक्स के अंदर, गोल की पॉट तैयार। वहां पर भाई साहब अभी थोड़े आंख मूंद के नहीं खेलेंगे, आंख खोल के। मिल्टन जी मेरे साथ यहाँ पर आ गए, हमारे कॉकबोरोग और इंग्लिश कॉमेंटेटर। और मिल्टन जी, आज का शुभ अवसर है, कॉकबोरोग का दिवस है, क्या कहेंगे आज इस माहौल को कैसे रंगीन और शाम को सुहाना किया जाए इस फुटबॉल से? Yes, ro satai klayo West Royals ni bakak teke je gameplay phanu zaman dongman tini abo belai ke week hai kenu zabo
tini kok brok bai beshirwag no commentary ni bakak sing thangai tong tam ni ba tini kok brok day celebrate khaijagi tong aboni bagai sing sini audience no bobono saira nam samo je tini kok brok day therefore 1979 of Cockbrook Day announcement khajago ba Cockbrook official language nei announcement khajago 1979 19th January aba haikeno tini Cockbrook Day pala jai tong and o jaga onor nungui man ka belaikan naitotok kaisa tournament TSL TTAADC 2024-2025 sponsor tai abai keno borok obono snami tongo belaikan naitotok play tinini je tournament phunungjagi tongo and so aun bagino takte bu sundorno obono sanamo smoje obo hai kaisa naitotok gameplay tinini hayo sing je manmani abo sini bagi belaikai kapal kaham tai kopro by commentary khlainani osuk jora kaham sini bagai belai ke kapal kaham hani bo kha khayo tamni hinba asuk bosoromai sini hastini boro kopro by ama haike kono jaga ophano commentary khlainani jora kaham sophayako tini kopro day celebrate khlaidong tai abon logyo no sing commentary bo kopro by bo khlaidong tai english hindi rok by bo sing khlailai dong mano aw sini bai ke belai ke kapal kaham taute bu som TTAADC ni je initiative tini najagi dong mani buagrani je imang sikla chalairono sanamai tisanani tai o sikla chalairono sanamai tai bo kubun salrogo kolok kotor kai tisait lang thamanani tai bo borok alka naitok kubun platform ro manani jora kaham manmani abose sini boron bai belaikai kapal kaham ni sing kha khayo tai kefek mani chawoi kelegi tongai kefek mani bai kobuli tongnai roni bagai kaisa message obono je obohai tournament rock norok participate khlaidi tai srungdi oroni bising teke noni bagai taibo jora kaham mani manan ni angkha khayo and so ladies and gentlemen this is an opportunity for us to be witnessing such a wonderful tournament here at Komalung Stadium. It's really awesome to see the youngsters, the young generations coming up. Maybe this is a new platform for all of them to showcase their talents and also their skills in sports like football. And so even in days to come, there might be their opportunity that they get to play in the state and also, in the national level. And this is a platform where they can groom themselves and come up to a better place. So, ladies and gentlemen, today the game is being played between the West Royals and also the North Panthers. And here, I guess, this is an opportunity for the West Royals. They could showcase the talent and skill. Nicely shot, but there should have been a player over there. Maybe the West Royals are not serious about what they're doing right now, but they shouldn't be wasting their time at this point of time because it's already 1-0. The North Panthers scoring 1 and West Royals just 0 up till now. And so it can be a dangerous situation for them at this point of time. Let's see how the defenders take care of the ball and save the ball from making the score. And there goes the call from the referee. Let's see what happens. Probably this could be another situation where the West Royals may fall into trouble. And there goes the referee. Really, educated and strong, energetic referees today, officials in the field. And so happy to see them doing such a wonderful job in the field. Nandanaran Jamatia as the referee out there in the field, and Nagendra as the first referee asked, and also the Kailas also is the second referee, and Sushil at the table today. And so
nicely, placed by the officials out there. What an awesome, energy that's been showcased by the, team of both sides, the North Panthers and also the West Royals. And I guess there could be, the first yellow card from the ref. There goes the first yellow card to the North Panthers, jersey number 17. Vanlal Kima, who's got his first yellow card on the match today, and this is not a very good sign, because if you are not aware of the rules and regulations, or you violate such rules and regulations in the match, you are definitely going to be given a yellow card, or if you still do not understand them, it's going to be a red card. So must be careful, must be really careful when you walk around the game. And that's a fault over there, and there goes the referee's signal. And so, yeah. And so probably there's going to be another kick. And this is the place where you shouldn't be really messing up with the place near the tee box. This is a dangerous place where there can be anything that may come up. This opportunity should not be missed by the West Royals at this point of time, because then you never know if they're going to get any other opportunity next time. And it's really, really important for the West Royals today that they score the first goal, at least at this point of time. And this could be no, and it's out. वेस्ट रॉयल्स ट्राई जरूर कर रहा है, आई मस्ट से मिल्टन जी एंड मिथुन जी, ट्राई अच्छा है, आपको ट्राई करना है, पर ट्राई के साथ साथ आपको सोच के ट्राई करना है। जो गलती नॉर्थ पैंथर्स ने की थी सबसे पहले, उन्होंने जो टारगेट लिया था वो थोड़ा सा सोच के उन्होंने नहीं लिया था, जिस कारणवश उनका गोल नहीं हुआ था। अब जो इसके बाद जो फर्स्ट हाफ के लास्ट में जो गोल उन्होंने किया, उसमें उन्होंने सोच के किया, टारगेट। अब देखा, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ देख वेस्ट रॉयल्स ट्राई जरूर कर रहे हैं, यहाँ शायद एक फाउल हो सकता है। ट्राई कीजिए, टारगेट सही लीजिए। अटैकर्स जो है, हमारे जो अटैकर्स है, वो सोच के, जो अटैक करना होता है वो सोच के करना होता है। पास सही से कीजिए, पास जब करते हैं तो सोचिए, क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं एक छोटी सी इंजरी और आ गई है हमारे नॉर्थ पैंथर्स के एक प्लेयर को। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं, यहाँ जो चीज, जो जज्बा आपको दिखाना है वो सोच के दिखाइए, क्योंकि मैंने बार बार कहा, यहाँ फुटबॉल सिर्फ पैरों का गेम नहीं है, पैरों का खेल नहीं है। यहाँ सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है, टारगेट आपको सही तरह से देखना पड़ता है। चतुराई का गेम है, कह सकते हैं। तो यहाँ मिथुन जी, जो हम मिल्टन जी और मिथुन जी हम जो बात कर रहे थे अभी हाफ के टाइम में, जब फर्स्ट हाफ खत्म हुआ था, जब हम बात कर रहे थे, एक ही चीज हम तीनों सेम चीज ही कह रहे थे, क्या कि जब आप कर रहे हैं, जब आप पास कर रहे हैं, तो आपकी नजरों में बातें होनी चाहिए। प्लेयर्स की नजरों से अगर बातें नहीं होंगी, समझ में नहीं आएगा उनको, तो किस तरह से वो अपने आप को अपने बॉल्स जो है वो पास कैसे करेंगे अपने टीम मेंबर्स को। वो सोच कर, हाँ तुम्हारे पास आ रहा है बॉल, मैं दूंगा अभी, मैं अभी किसके देने वाला हूँ पता होना चाहिए, और वहां तैनात रहने चाहिए अटैकर्स। तो यहाँ जो अब मैं देख पा रही हूँ, नॉर्थ पैंथर्स फिलहाल अभी सिर्फ ट्राई कर रहे हैं, या तो उनकी तरफ से गोल हो या उनका डिफेंस अच्छा रहे। और यहाँ देखिए, उनका डिफेंस वह अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, पर यहाँ वेस्ट रॉयल्स दे आर डूइंग ग्रेट। मिथुन जी, अब क्या लगता है, टाई होगा या एक और बढ़ोतरी ले लेंगे नॉर्थ पैंथर्स? हेलो, देखिए, कहते हैं कि हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। अब हिम्मत दिखनी है, क्योंकि अभी तक कोई चेंजेस तो हुए नहीं ज्यादा, एक आध चेंजेस हुए हैं टीम में। तो वेस्ट रॉयल्स को अभी जो मानसिकता है ना, वो ये उस भेद को तोड़ना है जो उनका डिफेंड है। देखिए, ये गुस्से वाली शॉट है, ये शायद जी हाँ, जिसका डर था येलो कार्ड आ गया है 12 नंबर के जर्सी को।
और ये शुभ संकेत तो नहीं कह सकते हम। ये गोलमेई को येलो कार्ड, संकेत अच्छे नहीं है। देखिए आप अच्छे प्लेयर हैं गोलमेई, एक और येलो कार्ड, ये ठीक नहीं दर्शा रहा है चीजों को, क्योंकि अगर आपको इस तरह से डबल 2 बार अगर येलो कार्ड मिलते हैं तो वो एक रेड कार्ड के बराबर होता है। ये फीफा का नियम है। तो आप संयम रखें अपने अंदर और खेले तो चतुराई लाइए अभी, क्योंकि अभी वो वक्त नहीं है आपके पास। आप वो ट्रिक को यूज कीजिए जो आपके कोच ने आपको बता के भेजी अंदर। थोड़ा दिमाग इस तरह से लगाइए कि वो भेद जो आपके लिए बना हुआ है वहां पर, जो आपके लिए बाउंड्री वाला डिफेंस बना हुआ है पैंथर्स के यहाँ पर, तो उसको तोड़ना है आपको, तोड़ के आगे निकलना है। मौके मिल रहे हैं और आपको जो एक मौके मिल रहे हैं ना वो 100 मौके के बराबर है, क्योंकि उनके पैंथर्स ऑलरेडी एक गोल कर चुकी है। तो उनके तो अभी उतना टेंशन है नहीं कि वो बंदे और एक गोल कर देंगे तो उनके खाते में और एक गोल आ जाएगा, पॉइंट टेबल में ऊपर चले जाएंगे। और ये जी हाँ, देखिए कहते कहते राहों में और एक कांटे बिछा दिए हैं पैंथर से वेस्ट रॉयल्स के। तो ये गोल देखिए किस तरह से, अगर ये क्या कहेंगे, डिफेंस इतना तगड़ा ना होने के कारण ये सब गोल हो रहे हैं। और यहां पर वेस्ट रॉयल्स को देखिए किस तरह का प्रदर्शन दे रहा है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनके जो पॉइंट टेबल में उनके जो अंक तालिका है वो काफी ऊपर चले जाएंगे अभी, क्योंकि 2 गोल उन्होंने दे दिए हैं। वेस्ट रॉयल्स को अभी विचार विमर्श जब भी वक्त मिले, समय मिले, कर लेना चाहिए। चलिए प्ले ऑन हो चुका है, अच्छी पास 17 नंबर के खिलाड़ी सौरमिता। ये जो 2 गोल हुए ना काफी भारी साबित होंगे वेस्ट रॉयल्स के लिए आगे चल के। मैंने कहा ही था मिथुन जी, मैंने अच्छे से कहा था कि वेस्ट रॉयल्स को अभी थोड़ा सा सोचना है, अभी अच्छे से करना है। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट हाफ, जब फर्स्ट हाफ में एक भी गोल नहीं हुआ था तब से दिमाग में यही था कौन फर्स्ट गोल करेगा। पहला गोल हुआ, पहला गोल होने के बाद वेस्ट रॉयल्स के दिमाग में ये आना चाहिए था कि नहीं, हमारे पूरे प्लेयर्स को भी हम इस तरह से करेंगे, इस तरह से पूरा स्ट्रेटेजी देंगे हम कि हमारा टाई एटलीस्ट हम कर पाए। और हम जानते हैं नॉर्थ पैंथर्स का जो स्कोर कार्ड में है, उनका जो टीम है, टीम नेम है वो 4th नंबर पे है, पर इसके बाद शायद वो 3rd नंबर पे आ सकता है। और वेस्ट रॉयल्स को अब थोड़ा सा सोचना है, क्योंकि देखते ही देखते हमारा सेकेंड हाफ के भी कुछ मिनट गुजर चुके हैं और अब उनके पास प्रेशर डबल है, डबल, क्योंकि गोल डिफरेंस अभी 2 है और आज का उनका एक भी गोल नहीं हुआ है, एक भी गोल नहीं हुआ है। दैट मीन्स कि आपको अब सोच विचार करना है एवं अब एटलीस्ट गोल एनी हाउ करना ही है। तो अब देखना ये है कि क्या वेस्ट रॉयल्स टाई तक भी जा पाएंगे, क्योंकि 2 गोल करना ये इतना इजी नहीं है जितना हम बोलते हैं। बोलने और करने में देयर इज अ डिफरेंस, राइट। तो हम जो एक्शंस करते हैं, आपके एक्शंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि किस तरह से आप जो स्ट्रेटेजी लगा रहे हैं, जो सोच रहे हैं, वो आपके पूरे टीम मेंबर्स के साथ अभी आपको वो डिस्कस करने का भी अभी आपको समय नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका फर्स्ट हाफ जो है वो खत्म हो चुका है, अब करने की बारी है। और क्योंकि अभी गोल डिफरेंस ऑलरेडी 2 हो चुका है और नॉर्थ पैंथर्स अब भी ट्राई कर रहे हैं कि उनकी तरफ से डिफेंस अच्छा रहे, और डिफेंस ना भी हो तो इधर उधर कुछ चेंजेस हो भी तो गोल उन्हीं की तरफ से हो। आप देख रहे हैं उनका डिफेंस देख रहे हैं आप, तो यहाँ आप देख पा रहे हैं हमारे वेस्ट रॉयल्स ट्राई पूरी तरह से कर रहे हैं, पर किसी ना किसी छोटे मोटे रीजंस के कारण भी, क्योंकि वो थोड़ा सा टीम वर्क दर्शाना है, थोड़ा और डेडिकेशन देना है, थोड़ा और हार्ड वर्क डेफिनेटली उनको चाहिए, क्योंकि एक भी गोल नहीं होना ये उनके लिए बहुत हानिकारक है। उनके जो स्कोर कार्ड में उनके नेम्स है, जो टीम नेम्स है, उसके लिए हानिकारक है। उनका नाम, उनका जो टीम का नाम है वो नीचे जा सकता है, तो वो भी हमें देखना है किस तरह से ये होगा। मिल्टन जी, मैं तो अभी सरप्राइज नहीं हूं, क्योंकि अभी सच में वेस्ट रॉयल्स को मेहनत करनी है, उनके पास वो डेडिकेशन है। आप अगर देखें वेस्ट रॉयल्स ने पहले जितने भी मैचेस खेले हैं, 2 मैचेस जो खेले हैं उसमें बेहतरीन किया है।
बेहतरीन प्रदर्शन किया है। अगर आप देखें हमारे गोलकीपर वेस्ट रॉयल्स के शांतु देवबर्मा, उनको थोड़ी और मेहनत करनी है, क्योंकि उनको थोड़ा और फोकस्ड रहना है कि और एटलीस्ट और एक चूक ना हो और नॉर्थ पैंथर्स और बढ़ोतरी ना ले पाए। वहीं अगर हम देखें कैप्टन गौतम जी हैं, पुइतो जी हैं, बीरो जी हैं, दे आर हैविंग दिस थिंग्स, दे आर हैविंग दिस गट्स कि वो कर सकते हैं और उनको करके अभी दिखाना है। मिल्टन जी क्या लगता है? There's going to be a change in the player from the team of North Panthers. Player number 10 will be going in, and player number 11 will be coming out. And so, player number 11, Jack Singh, will be coming out of the game, and player number 10 is going in. And so, it's a new strategy that they might have had in the discussion between the players, and so there's going to be a change in the player. Player number 10 is going in. Player number 10 is going in from the part of the North Panthers. That is Laljenga will be going in, and player number 11 is Rahul Kumar Riang, who's a striker, will be coming out of the game at this point of time. And so this is really nice to see, the way they are actually planning, and then, making strategies, putting in new players in the game, so that there is a new energy coming in from the team of the North Panthers. And so this is how you should be changing the strategies between the game, so that there be a new energy, new strength coming in from the part of the North Panthers. And I guess even the even the West Royals should also start to changing some of the players, those who are not performing or already losing their energy in the game. And so I'm sure even the West Royals have many things in mind going on at this point of time, because it's already 2-0, and they are into a very heavy pressure from the team of the North Panthers. And so they should be making some more changes in the player, probably in the defense. They should be changing their strategy and make a new new formation in the team, so that they can make the first goal at least. This is not right, and the players suddenly holding the ball when he knows that the ball is going out. That shouldn't really happen, and the ref has come up with with the yellow card there immediately. And this is something really funny to see in such kind of a game. This shouldn't be happening, but sometime out of your unconscious mind, you suddenly tend to pick the ball because you have been practicing almost in the same manner. And so this shouldn't be happening. But nevertheless, the West Royals should start making new strategies in the game. The captain should be talking to the players, making communication, so that there is no other scores that have been that's going to be scored in the team. And so they should be shooting the ball, passing short passes, and so that they can make their goal and make a positive impact between the players. So Romita. ट्रू मिल्टन जी, ये होना नहीं चाहिए था पर हो गया। दैट मीन्स टेंशन अभी पता चल रहा है। वेस्ट रॉयल्स वो टेंशन फील कर पा रहे हैं, जो कि मैंने कहा था मिथुन जी कि वो प्रेशर आपको तब फील होता है जब वो हो जाता है। जब मैंने एकदम पहले ही कहा था कि अगर आप गोल कर रहे हैं तो एक गोल जब आपने कर दिया है, यहाँ जब वेस्ट रॉयल्स को एक गोल मिल गया नॉर्थ पैंथर्स की तरफ से, उसी टाइम में उनका ये होना चाहिए था कि अब हम डिफेंस ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे। अगर हम एक गोल करना है तो डेफिनेटली सोचकर गोल करना। अभी देखिए, आप यहाँ भी देखिए, यहाँ एक गोल हो गया, एक और गोल, इट इज अ गोल। ओह माय गॉड, जस्ट लुक एट देम, यहाँ गोलकीपर को थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा और सजग रहना है, थोड़ा और फोकस्ड रहना है। आप बार बार देख रहे हैं, बार बार गलती नहीं कर सकते। एक बार अगर आपने गलती की है, मतलब उसी गलती से आपको सीखना है, उस गलती से आपको सीखना है।
17 नंबर प्लेयर जिन्होंने अभी गोल किया, वानलाल जी, क्या गोल था, क्या गोल था, क्या टारगेट था, वाव। पर गोलकीपर जो हमारे वेस्ट रॉयल से हैं, शांतु जी, गलती एक बार होती है, गलती दूसरी बार होती है, बट तीसरी बार तक भी सेम गलती कैसे? आपको और फोकस रहना है और सोचना है और विचार करना है इस चीज पर कि हाँ मेरे नजरों से गोल जो नहीं हो, वो बॉल मेरी नजरों से ना हटे और वो गोल ना हो, एनी हाउ वो गोल ना हो। आई एम लाइक आउट ऑफ वर्ड्स, कैसे ये पॉसिबल हो रहा है? वहीं वेस्ट रॉयल्स दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट, बट अब आपको और ज्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि लगभग अभी तक के इस मैच में आपका एक भी गोल नहीं हुआ है और आपको भी पूरा ट्राई करना है, एटलीस्ट आपका एक गोल हो, क्योंकि सेकेंड हाफ का भी लगभग अभी हाफ टाइम हो चुका है, सेकेंड हाफ का भी लगभग अभी हाफ टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है और आपके पास अब कुछ ही मिनट बचे हैं। कुछ मिनट में आपको या तो कर दिखाना है या आज का मैच आप भूल जाइए। यूं तो मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, नो डाउट, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है, पर वेस्ट रॉयल्स अब आपको मेहनत करनी है, क्योंकि 0-3 ये शायद बहुत बड़ी बात है। आपको 3 डिफरेंस, गोल डिफरेंस 3 है आपका, उसको पार करना। जो 2 मैं हमेशा कहती हूँ, फुटबॉल कभी भी किसी भी मिनट में कुछ भी हो सकता है, जैसा कि हमारे लास्ट मैच में वेस्ट वाइकिंग्स ने अचानक से 2 गोल लिया था, तो मैं बोल सकती हूँ हाँ अचानक से एक गोल, इसके बाद एक और एक गोल हो सकता है, पर गोल डिफरेंस आपका 3 है। आपको भी सोच विचार करना है। गोल डिफरेंस अगर आपका 3 है, आप देखिए जरा कितने ज्यादा फोकस है हमारे गोलकीपर। और ये जो शॉट है, ये आप सच में सही शॉट दे रहे हैं, नो डाउट, बट वो शॉट थोड़ा सा टारगेट थोड़ा सा देखिए, समझिए, क्योंकि गोलकीपर आप देख सकते हैं, गोलकीपर तैनात है वहां, वो सोच, वो वॉल की तरह खड़े हैं, दीवार की तरह खड़े हैं कि मैं गोल नहीं होने दूंगा जब तक मैं यहाँ हूं। तो वहां आपको यहाँ सोचना है कि मैं कैसा टारगेट लूं कि गोलकीपर से छुपाते गोलकीपर वहां ना आए और मेरा वो बॉल गोल की तरफ जाए, गोल पोस्ट की तरफ जाए और मेरा वो गोल हो, दागे मेरा गोल हो। तो यहाँ आपको ये देखना है, अब तो डेफिनेटली देखना है, क्योंकि गोल डिफरेंस अगर आपका 3 है और अभी तक के मैच में आपका एक भी गोल नहीं हुआ है, तो आप जितनी भी मेहनत करें वो व्यर्थ जाएगा। आपकी मेहनत के ऊपर मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ, क्योंकि आप डेफिनेटली ट्राई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पर वो मेहनत सही तरह से होना चाहिए ना। वो मेहनत अगर आप सही तरह से ना दे, वो सही तरह से आप चुनाव ना करें चीजों का, तो कैसे होगा? आपको वो चीज सोचना है। क्यों मिथुन जी? आई एम सुपर डाउटफुल कि अभी कुछ चेंजेस आ सकते हैं। हाँ, गोल 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, बट गोल डिफरेंस अब 3 है। क्या वेस्ट वाइकिंग्स की तरह वेस्ट रॉयल्स भी कुछ चेंजेस कर देंगे कुछ लास्ट मिनटों में? यूं तो जानती हूं मैं, फुटबॉल इज ऑल अबाउट टाइम एंड द गेम ऑफ कोर्स, बट स्टिल टाइम बीतता ही जा रहा है, टाइम किसी के लिए रुकता नहीं है, समय किसी के लिए रुकता नहीं, टाइम बीतता जा रहा है। क्या लगता है आपको, हो पाएगा ये डिफरेंस इजीली क्रॉस कर पाएंगे? कहते हैं कि नामुमकिन कुछ भी नहीं है, लेकिन मुमकिन भी यहाँ मुमकिन सा नहीं लग रहा है मेरे को, क्योंकि पैंथर्स 3 गोल दाग चुके हैं और ये 3 गोल, उनका जो डिफेंस है ना वो काफी तगड़ा है, उसको तो भेद के आगे जाके 3 गोल करना मतलब बहुत बड़ी बात होगी। ऐसा होगा कि शेर के मुंह से खाना छीन लेना या निवाला छीन लेना, वो तो पैंथर्स ठहरे। तो पैंथर्स काफी, अभी देखिए जिस तरह से उन्होंने फटाफट गोल कर रहे हैं ना हर एक अंतराल में, वो देखने लायक। वहां एक प्लेयर देखिए किस तरह से पासेस, यहाँ पर वेस्ट कोशिश बहुत कर रही है, कोशिश में कोई कमी नहीं है इनकी, बट वो कोशिश कारगर तब होगी जब आप गोल करेंगे, क्योंकि आपको टीम को जरूरत है आपके गोल की। तो आप अभी उस पादान पर है ही नहीं, क्योंकि आपकी परिस्थिति अच्छी थी पॉइंट्स टेबल पर, तो आप उस पॉइंट्स टेबल को चाहिए कि वो बरकरार रहे या ऊपर जाए। लेकिन आज आप अगर उसके बराबर भी कर देते हैं, तो आपके हर एक पॉइंट्स को देखते हुए, एवरेज को देखते हुए, तो आपका जो पॉइंट्स बनेगा तो शायद वो आपके पक्ष में बने। और पैंथर्स पॉइंट टेबल में सबसे नीचे थी, अब उनके पॉइंट टेबल में ऊपर आने के चांसेस है 3 गोल। अगर एक आध गोल और कर देते हैं तो वो ग्लेडिएटर का मुझे वो गेम याद है जो 5 दागे थे, और वो उसका आज रिकॉर्ड अगर तोड़ सकता है तो ये पैंथर्स, उनकी काबिलियत पर शक नहीं होना चाहिए। काफी मेहनती लड़के हैं,
काफी अच्छे बंदे हैं सब, कद काठी बराबर है सबकी। और जिस तरह से अभी वक्त तक जितना समय बीतता जा रहा है उनका एनर्जी लेवल मानो उतना हाई होता जा रहा है। आज ये हरा रंग खुद पे नहीं बल्कि सब पे चढ़ेगा और गोल मुझे लगता है पैंथर्स जिस तरह से हावी हो रही है कुछ हो सकता है। और वेस्ट इंडीज को कोशिश करती रहनी चाहिए। देखिए थ्रो भी देखिए आप, थ्रो देखिए, वाओ पैंथर्स के प्लेयर भी बगल में खड़े हैं, थ्रो आप दे रहे दोनों के बीच। आपको इसमें संयम रखना है और अभी आपा नहीं खोना है। अभी आप अगर दिमाग से थोड़े डिसबैलेंस होते हैं ना तो खेल का पूरा जो माहौल है ना बिगड़ जाएगा आपका खुद का और आपकी टीम का। सौरभ इस चीज को देखिए आप। बिल्कुल 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 देख तो रही हूँ मैं बहुत कुछ, पर नॉर्थ पैंथर्स यू गाइस, ओ माय गॉड, द प्लेयर्स, ओ माय गॉड, कितना बेहतरीन प्रदर्शन। पर मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि वेस्ट रॉयल्स आज ट्राई नहीं कर रहे। वेस्ट रॉयल्स आपको ट्राई करना है, आपको देखना है, समझना है, जो कि बार बार मैं बोल रही हूँ, आपको टारगेट सही रखना है। क्योंकि यहाँ नॉर्थ पैंथर्स का अभी जज्बा, जो कि मिथुन जी ने कहा, उनका जो कॉन्फिडेंस है वो नेक्स्ट लेवल चला गया है। क्योंकि 0-3 अगर आपका है गोल तो उसमें अलग अलग आपका वो आ जाता है कि हाँ हमने कर दिखाया है, बेहतरीन किया है हमने। तो यहाँ अगर ये देखिए, यहाँ देखिए उनका ट्राई जो है वो खत्म नहीं हो रहा है, वो कोशिश खत्म नहीं हो रही है, करना ही है। एक जरूरत पड़ने पर अभी और 1-2 कर लेंगे। गोमती ग्लैडिएटर्स की तरह वो होता है ना कि हाँ कह सकते हैं कि ये हमें कर दिखाना है। शायद उन्होंने गोमती ग्लैडिएटर्स का भी शायद मैच देखा था, तो इस कारणवश मुझे लग रहा है कि एक और उनकी तरफ से हो जाएगा, क्योंकि उनका डिफेंस स्ट्रांग है और वो अट्रैक्ट करने में पूरी तरह से ध्यान दे रहे हैं। वहीं वेस्ट रॉयल्स थोड़े से चूक रहे हैं क्योंकि उनका जो टीम वर्क है, वो जो डेडिकेशन है, वो यहाँ भी वो शो नहीं कर पा रहे हैं। सौरमिता देखिए एक बात यह है कि जिस तरह से अटैकिंग चल रहा है ना पैंथर्स का, वो ऐसा भेदी बाण है जो निकल चुका है मैदान से, अभी उसको रोकना बहुत ही मुश्किल है। आप देखिए अभी ज्यादा वक्त कौन कहां किसके बॉक्स में बिता रहा है। आप देखिए पैंथर्स को ले लीजिए, पैंथर्स इस सर्कल के इस अंदर जा रही है तो मतलब रफ्तार के साथ, मतलब ज्यादा एवरेज हुई पे है उनका पॉइंट, तो इसका मतलब स्ट्रोक पॉइंट उनका पकड़ेंगे आप। बिल्कुल, क्योंकि ये हरा रंग यानी पैंथर्स आज बहुत हावी हो रखी है। अभी तो हाफ टाइम के बाद मैं और भी हावी देख रहा हूँ, क्योंकि 2-2 गोल दाग चुके हैं। टोटल इनके 3 गोल है। देखिए अभी भी वही डी बॉक्स में है, 2 प्लेयर है उनके बगल में, और यहाँ पर लेफ्ट विंग में एक प्लेयर को खड़ा करके रखा है, राइट विंग में एक को। तो देखिए उनका जो रणनीति है वो किस तरह का बना कर रखा है पैंथर्स ने, और उसी रणनीति को तोड़ना वेस्ट रॉयल्स को। वेस्ट रॉयल्स कहीं चूक रही है सौरमिता। ये चीज मैं भी नोटिस कर रही हूँ कि वेस्ट रॉयल्स ने स्ट्रेटजी जरूर थोड़ी बहुत चेंज की है, पर नॉर्थ पैंथर्स अभी सच में और ज्यादा स्ट्रांग होके आए हैं ऐसा लगता है सेकेंड हाफ में। वो और अपने कोच से डिस्कशन उन्होंने किया है कि क्या और अच्छे से कर सकते हैं, और इसके बाद जो अब वो गोल दागे ही जा रहे हैं, और उनका जो डिफेंस माशाल्लाह क्या बात। तो आप देख सकते हैं वो रुक नहीं रहे हैं, यहाँ उनका पेट भर नहीं रहा है। वो भी चाहते हैं कि अभी हमारा स्कोर बोर्ड में जहां हमारा टीम का जो नाम है वो जिस तरह से भी आगे जाएगा, हम उसको ऊपर किसी ना किसी तरह से हम उसको ऊपर लेकर जाएंगे। सौरमिता अगर एवरेज मीटर होता तो अभी मेरा अंदाजा है, मैं जहां तक फुटबॉल को देखता हूं समझता हूं, मेरा ये अंदाजा है कि अगर एवरेज मीटर होता है कि कौन किसकी तरफ ज्यादा हावी है, तो पैंथर्स को आप 70 एवरेज दे देते, 65-70 दे देते अभी तक, क्योंकि कौन किस पर जितना हावी। देखिए सर्कल बोर्ड के अंदर और डी बॉक्स में कौन ज्यादा हावी था। ये हरा रंग जो अब तक हावी था येलो रंग पर, और पीला रंग उतना हावी नहीं हो पाएगा पैंथर्स पर, नहीं तो उनके गोल हो जाते अब तक। कोशिश कहीं मुझे कमजोर दिख रही है। एवरेज के साथ साथ प्रोबेबिलिटी भी आप देखिए कि अभी इस पर्टिकुलर टाइम में, क्योंकि अभी आप देख सकते हैं सेकेंड हाफ का भी हाफ हो चुका है। आप टाइम देखिए जरा मिथुन जी, सेकेंड हाफ का भी लगभग हाफ टाइम हो चुका है, एंड यहाँ शायद एक इंजरी, ये सीरियस ना हो यही हम आशा रखते हैं। तो जैसा कि हमने कहा कि इसका भी अभी लगभग हाफ टाइम हो चुका है, और पैंथर्स आज सच में पैंथर्स बन के आए हैं। ये तो कहते हैं पैंथर्स की जो और आखिरी के 8 से 10 मिनट, सिर्फ 8 से 10 मिनट बचे हैं। देखिए सौरमिता ये 8 मिनट का अगर खेल है अभी बचा, तो जिस तरह का प्रदर्शन रहा है मिल्टन जी, मुझे अभी थोड़ा सा वेस्ट जो है ना रॉयल्स, उस पे मैं उनके प्लेयर के जो अभी तक रणनीति रही या उनका जो प्रेशर क्रिएट करना रहा उन पर, वो मुझे कहीं ना कहीं मुझे उतना खुश नहीं कर पाई, शायद उसके दर्शकों को भी, क्योंकि आपने उस तरह का परफॉर्मेंस ही नहीं डाला, क्योंकि आपका 7-8 मिनट बचे हैं। तो मिल्टन जी पूरे खेल का ओवरऑल
आप क्या कहेंगे अपने लफ्जों? Yeah, that's not been a very tremendous performance by the West Royals today. It's really sad to be, watching such game. We never expected a game like this before, but we thought probably, the West Royals also were really, really prepared today to showcase their talents and also their skills in the game. But, what's happening here in the match is, the West Royals really could not come up with a very strong performance, and also their teamwork over there. You see how they have given the gap over there. What a sad, situation for the, defending team. Because you shouldn't be leaving the ball with a player over there just like that. It's really sad to see the defending team out there. Very poor performance. But I think they should be really looking into the matter, and the captain should be focusing and talking to the teammates, and they should be showcasing more. More of a teamwork over there. Otherwise, there's only another few minutes more, and they won't be able to, even score one, which is going to be really sad on the part of the West Royals today. Otherwise, the North Panthers doing really great and performing really, really nice, and they've been playing the match today really cool and steady, and such a wonderful match showcased by the North Panthers today. And so there goes the referee's signal, and probably there's going to be a free kick for the North Panthers at this point of time. North Panthers getting another opportunity. Probably they will be able to make another score, and if so, then the West Royals need to leave the game with just 0, and which is impossible, to win the game at this point of time, as far as I can see, with the time that is being there in hand. And so let's see what happens, but you never know, because the ball is shot over the goal post. Not a very lucky day for the West Royals today. Otherwise, the North Panthers doing and performing really, really fantastic gameplay today. And so I'm sure that the coaches today may not be really, happy by the West Royals today. The team B of the West really not performing as required. I don't know why, but somewhere or the other, there's a lack of communication between the players, and at this point of time, the North Panthers will, waste their time shooting the ball in the air, or probably, not even letting the ball touch them, and they would really want to score the goal if possible. But you see how strongly it has been defended by the team of the North Panthers. What a lovely match showcased today by them. Oh my God, what a match, what a match. पर आप शायद अच्छे से जानते हैं कि अगर आप पैंथर्स को देखें, यूं तो पैंथर्स जिनको हम कहते हैं ऑन द स्पॉट जो प्रॉब्लम सॉल्वर्स के नाम से भी जाना जाते हैं, पर आज एक्चुअल में हमारे नॉर्थ पैंथर्स एक्चुअली उनका जो नाम है उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं. सी उनका जो भूख है वो कब नहीं हो रहा है. दे रियली वांट कि अब भी और एक गोल उनको चाहिए, और क्या पता 3 से 4 उनका हो जाए. मतलब उनकी तरफ से हम गोल देंगे नहीं और गोल करके दिखाएंगे, जो पूरे गेम में पूरे मैच में उन्होंने दिखाया है. 0-3 आप देख सकते हैं, और किसी भी समय ये 0-4 हो सकता है. मैं तब से ट्राई कर रही थी, सोच रही थी कि क्यों वेस्ट रॉयल्स अपना थोड़ा और बेहतरीन नहीं दे रहे हैं, बट दे आर डूइंग देयर ग्रेट. बट यहाँ डिफेंडर्स देखिए, यहाँ डिफेंस देखिए आप नॉर्थ पैंथर्स का. कैसे करेंगे वेस्ट रॉयल्स यहाँ गोल, कैसे करेंगे आप? डिफेंस देखिए मिथुन जी,
इनका डिफेंस, क्या बात, डिफेंस के साथ साथ अभी दे विल बी लाइकिंग कि हाँ हम समय को सही सदुपयोग करें, हम उसको टाइम वेस्ट करें, कह सकते हैं कि टाइम वेस्ट कर अभी हम गोल करने ना दें, और अगर हमारा गोल हो रहा है बेहतरीन, उनका गोल ना हो, तो यहाँ आउटलाइन से बाहर हमारा बॉल। पर यहाँ मैं बार बार सेम चीज ही कह रही हूँ कि एटलीस्ट एक गोल तो डेफिनेटली बनता है, एक गोल तो डेफिनेटली बनता है वेस्ट रॉयल्स के द्वारा। उन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है, और अगर अभी भी वह गोल नहीं कर पा रहे हैं और लास्ट के आई गेस आखिरी 4 से 5 मिनट बचे हैं, कैसे ये गोल करेंगे वो उनको देखना है, वही उनको सोचना है। मिथुन जी क्या लगता है एटलीस्ट एक भी गोल हो पाएगा? देखिए, काबिले तारीफ तो है वेस्ट रॉयल्स की टीम, क्योंकि उसके पास बेहतरीन उम्दा खिलाड़ी है, जैसे गोल में है बाइथियांग है, सांतु है, पुइतो है, तो ये सब ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका प्रदर्शन हो तो उस लेवल का था। आज अपना प्रदर्शन वो नहीं दे पाए, इसलिए किसी का दिन किसी का होता है, किसी का नहीं होता है। लेकिन जिस तरह के जज्बात और हालात को खेल के माध्यम से आज पैंथर्स ने दिखाया है, वो उनका मानना पड़ेगा। वो दृश्य जो गोल का था, एक हर एक जगह से जो गोल उठा के उन्होंने अंदर डाला है, और प्रदर्शन काबिले तारीफ पैंथर्स का आज अच्छा खेला है। और एक अच्छा शॉट फिर से यहाँ पर वेस्ट रॉयल्स का, चूक गए बुरी तरह से, माप नहीं पाए। वो मापदंड जो होता है ना, वो दिमाग से थोड़ा सा वो था, मतलब चिलमिलास आ गया वहां से, थोड़ा जो मेजरमेंट था वो गलत बैठ गया, नहीं तो सही जगह पे दागे थे। अगर वो सही से जाता वहां पर थोड़ा सा 1-1.5 हाथ नीचे, तो फिर एक गोल उनके खाते पे एक आ जाता। चलिए, अनहोनी को होनी करते, होनी को अनहोनी, वही खेल है। देखना है आज ये हरा रंग और क्या और एक गोल कर पाएगी। पॉइंट्स टेबल में अपना जो प्रदर्शन है उसको सही दर्शाने के लिए, सही जगह पे, सही क्रमांक पे बिठाने के लिए, क्योंकि जरूरत है यहाँ पर गोल्स की। जितने ज्यादा गोल करेंगे सौरभ मेहता, उतने अच्छे जगह पर आपका पॉइंट्स टेबल पे स्थान बनेगा। मिथुन जी, आप एक चीज जानते हैं, ब्लैक पैंथर को घोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट माना जाता है, ब्लैक पैंथर को, पर आज वो ब्लैक पैंथर ग्रीन में आए हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। यूँ तो पैंथर्स कहते हैं कि ऑन द स्पॉट वो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और किसी भी जगह में वो इजीली अडेप्ट कर लेते हैं, और मैं देख पा रही हूँ सेम चीज मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि आज वो सेम ग्रीन में है, ब्लैक है पर ब्लैक पैंथ है उनका। वही बात है कि ब्लैक पैंथर्स आज एक्चुअली उनका रूप लेकर आए हैं, पैंथर्स का रूप लेकर आए हैं। दे आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स, जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर रहे हैं, अपना गोल दाग रहे हैं, डिफेंस उनका अच्छा है, एंड अडेप्ट अच्छे से कर लिया है उन्होंने स्टेडियम को, एंड नो डाउट आज बहुत बेहतरीन अटैक दे रहे हैं। नॉर्मली जैसे पैंथर्स को बहुत स्लिथी अटैकर माना जाता है, वैसे ही आज वही सेम अटैकिंग पोजीशन दे रहे हैं हमारे नॉर्थ पैंथर्स। यहां वेस्ट रॉयल्स, अब एक चीज माननी पड़ेगी मिथुन जी एवं मिल्टन जी, वेस्ट रॉयल्स जितना भी हम कहें, वो डीमोटिवेट नहीं हुए अभी तक। उनका एनर्जी माशाल्लाह, क्या बात, अभी तक इतने देर से वो अंडर कॉन्फिडेंस नहीं आया। नॉर्थ पैंथर्स का मान गए, 3 गोल्स हो गए, कॉन्फिडेंस आ गया है, पर वेस्ट रॉयल्स, ओ माय गॉड, अभी तक उनका जो जज्बा स्टार्टिंग से लेके अभी तक सेम है। West Royals really need to come up at this point of time. You do not have enough time, and people, it is needless to say that the North Panthers have already scored 3, and West Royals 0. Trying the best to make this first score, but still not being able to go through this at this point of time. What an unfortunate day for the West Royals, but nevertheless they have not even been demotivated by what they have been doing. They're trying their best, and the defenders from the West Royals really need to work hard at this point of time, because if the ball goes beyond the D box out there, it's going to be another difficult situation for them, and they shouldn't be at this point of time, because then another score may come up for the North Panthers. But lucky enough the North Panthers
being able to save every time they were being shot by the players from the West Royals today. What a lucky day also, I should say, or a very upsetting day for the West Royals. Trying their best, shooting it long, but the goalkeeper was all set and ready, saved the ball over there. Beautiful shot by the team of the West Royals. Yet Panthers doing awesome job today. This afternoon, the weather also looks really nice, and the players from both the team trying, still trying their best, even in the last minute. But up till now, there's been no luck for the West Royals. They should have had, taken the opportunity in the first half and, later relaxed for a while. But this is not the kind of situation they should have been. This is another goal. Likewise, it is set already that you never know. Even at the end of the game, the game can change, and so the West Royals, you see, they have not lost their energy. They tried. They have not been demotivated and shot their first goal. Even at the end of the match, probably there's only another few minutes, and they've scored their first goal. And let's see what happens. But the West Royals, even in the previous game, we've seen the West Vikings putting the 2 goals even at the end of the match, and you never know, another goal can happen, and they would be coming to 3 equal. But on the safer side, they still tried putting in one goal today and leading themselves to get another point, trying their best to win the game. But the North Panthers, very strong today, very strong, and again tried their best to make another score on behalf of the North Panthers, but they really couldn't make the score. And so it is really awesome to see that player number 11 on the part of the West Royals, Jack Singh, has made his first score, the striker of the West Royals. वाहन बांग जैक सिंह उनके पहले गोल के साथ वेस्ट रॉयल्स ने अपना पहला गोल एटलीस्ट दागा। जो ऑनलाइन हमें जितने दर्शकगण देख रहे हैं, जो यहाँ जितने स्टेडियम में जो लाइव हमें दर्शकगण देख रहे हैं, जो सपोर्ट कर रहे हैं वेस्ट रॉयल्स को, एटलीस्ट उनके लिए ये बेहतरीन बात है। और यहाँ समाप्ति ये लगभग एक तरफ से ही जा रहा था, एक तरफा गेम चल रहा था इतने देर से, पर एटलीस्ट एट द लास्ट मोमेंट एटलीस्ट एक गोल दागा वेस्ट रॉयल्स ने, ये बहुत बड़ी बात है। एंड यही देखना था कि क्या लास्ट तक भी एक गोल भी क्या वेस्ट रॉयल्स नहीं कर पाएंगे, बट एटलीस्ट एक गोल रहा। तो 3-1 के साथ नॉर्थ पैंथर्स आज जीत गई है ये गेम। कॉकबोरोग डे में जो सबसे ज्यादा कह सकते हैं जानना माना वाला आज का दिन है, आप सबको एक बार फिर से शुभकामनाएं। साथ ही साथ आज के इस बेहतरीन से दिन में जीत गई है नॉर्थ पैंथर्स। मिल्टन जी, नेक्स्ट इस खूबसूरत से दिन में हम फिर से मिलेंगे अगले मैच में मिल्टन जी एंड मिथुन जी के साथ। मैं शौरभिता आप सभी के साथ रहेंगे एंड आशा करते हैं नेक्स्ट मैच भी बेहतरीन होगा। आज के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं आप सभी को हमारे साथ जुड़े, जिन्होंने हमें ऑनलाइन देखा, जिन्होंने हमें आज यहाँ स्टेडियम में लाइव देखा, उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। धन्यवाद देना चाहते हैं TTAADC को, जिनके द्वारा इतना बेहतरीन इनिशिएटिव लिया गया, फुटबॉल को इतना कह सकते हैं प्रोत्साहन दिया गया। और फिर से मिलेंगे हम अगले मैच में अगले दिन में मैच 13 में। आज के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस लाइव, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस, थैंक यू। फिर से मिलेंगे लाइव, धन्यवाद।